Hello dear student, in this particular video we are going to discuss CBSE class 10th chapter number 1 of English literature, and that is Letter to God. So in this particular video we will discuss the chapter and line by line explanation of this chapter so that you have the better understanding of this chapter. And if you understand this chapter, you can do any question whatever will come in your board exam. And during this lockdown situation, your study will continue from this channel, and I will make you study every subject, and the lecture will be uploaded daily, and chapter wise I will explain each and every chapter, and note you down the important question whatever asked in the previous year in board exam. So I hope that you will appreciate this initiative, and subscribe the channel Rashri Solution, a complete CBSE solution. So first lecture is about Letter to God, which is from English literature, and that is what I love the most, reading the stories, and this is one of the best story which I have read. It has comic content also. It shows the, you can say, the innocence nature of the farmer, uh, who is Lencho, the main character of this chapter. So it depicts the, means you can say, a very very innocent farmer who don't know about the things, uh, like we are knowing and understanding the things around to us. He is so innocent that he write letter to God, and we never imagine to write a letter to God, because that letter cannot reach to God, but he is writing a letter to God. So in this particular lecture we'll discuss the chapter, but for most important thing is to know the writer of this chapter, and that is J.L. Fuentes. So you have to remember that the writer of this chapter is J.L. Fuentes. So let's start the chapter. Lencho Lencho's crop was destroyed by heavy rain, and what happened with Lencho, and tragedy happened that his crops, which he showed with full of hard work and dedication, that is ruined, that is vain, बर्बाद हो गया. और क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि बहुत हैवी रेनिंग हो गई थी भाई. इस वजह से लेंचो के क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए कम्प्लीटली. उसने बहुत हार्ड वर्क करके अपने क्रॉप्स को बड़ा किया था, और अचानक से बारिश आई और डिस्ट्रॉय हो गया. सो ही टर्न टू गॉड फॉर हेल्प, एंड नाउ व्हाट हैपन, कि वो अब भगवान के पास जाता है कि भगवान अब मेरी मदद करिए. और हम लोग अक्सर ये चीज़ करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है, वेन एवर वी फेस एनी डिफिकल्टीज वी गो टू गॉड एंड वी रिमेंबर गॉड. ही रोट टू God a letter asking him to send him money, and what he does, he just write a letter, he narrate everything in that particular letter to God, and he asks money from him. वो एक पत्र लिखता है भगवान को, और वो उनसे पैसे मांगता है, मदद मांगता है कि वो फिर से जो उसके क्रॉप्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उसका रिटर्न में उसे पैसे मिल जाए, ताकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से क्रॉप उगा सके. He received a letter from God along with some money, and what happened, he just imagine the letter which he received. जो लेटर उसे मिलता है, उसे लगता है कि ये लेटर कहाँ से मिला है, उसे गॉड ने दिया है. Who actually sent the money, ये हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि किसने एक्चुअली उसे मनी सेंड की. वॉट डिड लेंचो डू टू देम, और उससे वो लेंचो ने क्या किया फिर उसके बाद. लेट अस रीड द स्टोरी फॉर नोइंग दिस थिंग. So let's move. This story was about an innocent who strongly have faith in God and wrote a letter to God himself. तो ये हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इनोसेंट फार्मर के बारे में जिसका नाम है लेंचो, जिसका स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड पे, और जिसके लिए उसने लेटर लिखा है भगवान को, गॉड को मदद मांगने के लिए. So from here the story starts. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो एक ऐसा घर है जो पूरे एंटायर वैली में
एक लो हिल के क्रेस्ट पे है। लो हिल का क्रेस्ट, यू कैन सी द हाउस इज एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल, मीन्स यू कैन से कि ये हिल है, इसके ऊपर एक घर बना दिया गया है, तो ये होगा क्रेस्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्रेस्ट, कि उसका जो घर था वो कहाँ पे था, एक क्रेस्ट पे था, एंड दैट इज ऑफ द ऑन द लो हिल। From this height, one could see the river, and next to the coral, the field of ripe corn dotted with kidney bean flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was rainfall, or at least shower. सो ऐसे जगह पे उसका घर सेटल था कि वहाँ से वो सारी चीज़ें अपना ऑब्जर्व कर सकता था, अपनी फील्ड ऑब्जर्व कर सकता था, जहाँ पे उसने क्रॉप्स बोए हैं, और उसके क्रॉप सब पकने वाले हैं, उसके कॉर्न सब पकने वाले हैं। कॉर्न यानी कि मक्का उसने बोया था, वो पकने वाले हैं। साथ ही साथ उसने किडनी बीन भी बोया था। किडनी बीन यानी कि क्या, राजमा जिसे हम बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज, वो भी अब पकने वाले हैं। बस उन्हें क्या चाहिए, बस उन्हें एक अच्छी सी बारिश चाहिए, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी सी बारिश चाहिए, ताकि उसको उसको एक अच्छा हार्वेस्टिंग मिले, उसे अच्छी फसल मिले, एक अच्छा रेनफॉल उसे चाहिए। और वो भी रेनफॉल कैसा, शावर की तरह, ये नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट वॉट एवर रिटन इन द फर्स्ट। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drips of rain began to fall. और जब वो खाना खा रहा था, जब खाना खाने वाला था, उस समय लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी किया था कि अब बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरेंगे रेन के, और तभी बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्रिप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रिप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत सारे जो क्लाउड्स हैं वो आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, दे आर कमिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और उस समय हवा बहुत ही फ्रेश थी, स्वीट थी, एज this is the rainy season, and as rain approach the air seems very fresh to us. So ऐसे ही फ्रेश एयर उस समय भी बह रहा था, और बहुत ही सुहाना मौसम था, और बारिश होने ही वाली थी जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। It's really getting bad now, and now but as he predict कि थोड़ा सा बारिश होना चाहिए शावर की तरह, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत ही हैवी रेनिंग हो रही है। Exclaimed the man, mortified, I hope it passes quickly। और उसने बोला कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था, मैंने सोचा था कि ये जो बारिश है ये जल्दी पास हो जाएगी, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी पास नहीं हो रही है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक बारिश होती रही। बड़े बड़े स्टोन्स गिरने लगे, यानी आइस स्टोन्स जिसे हेल कहते हैं, हेल स्टोन्स गिरने लगे उसके घर के ऊपर। द गार्डन, द हिल साइड, द cornfield, on the whole valley, the field was white as if it covered with salt। और क्या हुआ कि कुछ घंटों की ही बारिश में, 1 घंटे की ही बारिश में, जो उसका गार्डन था, उसका हिल साइड था, उसका जो कॉर्नफील्ड था, और पूरी वैली, उसका घर, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वाइट कलर के सॉल्ट से ढक गया हो, यानी कि इतनी ज़्यादा हैवी हेल स्टोनिंग हुई थी। और जब हेल स्टोन पड़ता है क्रॉप्स पे, तो क्रॉप्स पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो ये सीन रहा, उसने देखा जब ये बारिश पास ओवर हो गई तो। Lencho is a man who devastated because of the hailstorm that hits his farm and ruined almost everything। So जो लेंचो था वो एकदम एकदम डिवास्टेटेड हो गया, मतलब बिखर गया वो। और इतने ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स को देख करके, जो उसके फार्म्स के ऊपर अटैक कर दिया था, पूरा फार्म उसका तबाह हो गया था, पूरी खेती उसकी तबाह हो गई थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, रूइंड। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न की जो फसल थी वो एक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी,
बर्बाद हो चुकी थी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात उसके लिए सबसे दुखदाई रात थी, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपने फसल को उगाने की कोशिश की थी। ऑल आवर वर्क नथिंग, फॉर देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, एंड वॉट ही स्टेट, कि जो हमारा वर्क था वो अब कुछ नहीं, वो ज़ीरो हो गया। दैट वर्क टर्न टू बी ज़ीरो, एंड वॉट एवर वर्क वी हैव डन इज जस्ट यूजलेस, इज वेस्ट इन द वाटर। और कोई भी अब उनकी हेल्प करने वाला नहीं है। तो जब कोई हमारे सामने हेल्प करने वाला नहीं होता है तो हम किसे याद करते हैं? वी रिमेंबर टू गॉड, सो एज लैंचो डू। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. देखो, लेंचो जो था वो एक ऑक्स की तरह था। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब एक बैल की तरह था, यानी बैल की तरह वो काम करता था, पूरे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता था फील्ड में, लेकिन फिर भी बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी पढ़ा लिखा एक अच्छा किसान था, भले ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो। हैविंग फुल फेथ ऑफ गॉड ही देन रोट अ लेटर, उसको भगवान पे बहुत विश्वास था, फिर उसने पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। गॉड ही रोट, उसने पहले स्टार्टिंग में लिखा क्या? भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow the field again and to live until the crop comes because the hell storms। उसने लिखा कि हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो हमारी जो फैमिली है वो हंगर से मर जाएगी, पूरे साल हंगरी रहेगी, और इस वजह से मुझे 100 pesos चाहिए। pesos is the word which come from the American English, so here pesos means पैसे चाहिए, उसे 100 pesos चाहिए। और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ मेनी pesos was needed टू लेंचो, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ही नीडेड 100 pesos। तो वो चाहता है कि वो उसे 100 pesos मिले ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा से बो सके और उससे उसकी लिविंग उससे अर्न कर सके, उसके क्रॉप्स हों जिसकी वजह से वो हंग्री ना रहें पूरे साल। और ऐसा उसने क्यों लिखा? क्योंकि उसने रीज़न भी प्रॉपर लेटर में लिखा है कि क्योंकि हेल स्टॉर्म आया था। ये आपकी गलती है कि हेल स्टॉर्म आया, भगवान की गलती, ऐसा इसमें लिखा नहीं, लेकिन ऐसा उसका मानना था। हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल जो है कम्प्लीटली बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और फिर वो एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो लेटर को तो लेटर बॉक्स में डाल दिया, फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसके बाद फिर वो पोस्ट स्टैम्प उस पर प्रॉपर लगाता है, मार्क लगाता है उसे, फिर वो मेल बॉक्स में डाल देता है। द विलेज पोस्ट मास्टर ओपन इट एंड इट रीड, और उसके बाद फिर जो विलेज का जो पोस्ट मास्टर रहता है वो उसे ओपन करता है, उसे पढ़ता है, और क्या देखता है भैया? पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। उसके बाद पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि उसे इस लेटर का जवाब ज़रूर देना चाहिए। बट वेन ही ओपन इट, और जब उसे ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने फिर वो देखा कि इस लेटर का तो आंसर देना चाहिए, बट उस आंसर के साथ साथ उसे कुछ और भी लगेगा। उसे सिर्फ पेन का इंक और पेपर नहीं चाहिए, बल्कि उसके अलावा भी कुछ चाहिए, और वो क्या था? 100 pesos था। द पोस्ट मास्टर then decided to help him and gather everyone's money as an act of charity। उसके बाद पोस्ट मास्टर जो रहता है वो अपनी कलीग से जाके डिस्कस करता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है एक फार्मर की, और उसे 100 pesos चाहिए और हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड पे, तो इसकी मदद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी फैमिली जो है वो दे आर डाइंग ऑफ हंगर। So it was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by the Lencho। लेकिन उनके लिए भी ये इम्पॉसिबल काम हो गया कि वो इतने सारे पेसोज एक साथ इकट्ठा कर पाए लेंचो के लिए। सो he was able to send the farmer only a little more than half,
लेकिन फिर भी वो फार्मर को कुछ हाफ पैसे ही उसे, मतलब एक हाफ पैसे से ज़्यादा उसने सेंड किया। तो कितने सेंड किए ये आपको याद रखने ज़रूरी है, 70 pesos. He put the bills in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a signature God. और उसके बाद उसने साइन कर दिया, और वो भी साइन किसका किया, गॉड का, गॉड बन करके साइन कर दिया। उसमें 70 pesos डाल दिया, जो कि 100 pesos तो नहीं थे, लेकिन इतने ही इकट्ठा कर पाए, क्योंकि 100 pesos उनके लिए भी इकट्ठा कर पाना काफ़ी टफ टास्क था, क्योंकि इतनी अर्निंग उनकी नहीं थी। एक तो अपने अर्निंग में से पैसे दे रहे हैं, और फिर उसे एनवलप में पैक करता है, उस पर एड्रेस लिखता है लेंचो का, और उसने सिग्नेचर कर दिया किसका, गॉड का। फिर द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। फिर वो क्या होता है कि लेंचो जो नेक्स्ट संडे वो जल्दी उठ जाता है, और फिर वो जाके पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया, कोई लेटर आया। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। लेकिन वो एक पोस्टमैन उसके पास आता है और उसे वो लेटर हैंड ओवर करता है, ये रहा तुम्हारा पत्र। और फिर पत्र जब देखेगा तो लेंचो क्या होगा, बहुत ही खुश होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द बिल। लेकिन फिर भी लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ ये देख करके। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे ट्रस्ट था भगवान पे कि भगवान जरूर पैसा भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई था कि वो बिल्कुल शॉक्ड नहीं था कि उसे भगवान के पास से पत्र मिला है, क्योंकि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फेथ, ए स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन द गॉड दैट गॉड विल हेल्प हिम। बट वॉट हैपन, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसके बाद फिर वो मनी जब काउंट करता है तो वो बहुत एंग्री हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास तो 70 पैसे से ही आया था, भगवान ने तो चीटिंग कर दी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। फिर वो कहता है भगवान से मिस्टेक तो हो नहीं सकती, नौ, क्योंकि भगवान इंसान तो है नहीं, तो उनसे मिस्टेक तो होगी नहीं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। और भगवान ने तो मना भी नहीं किया जो मैंने मांगा उससे। लेंचो ने जो मांगा वो भगवान ने मना भी नहीं किया, भगवान मिस्टेक भी नहीं कर सकते। लेकिन पैसे इतने कम क्यों, तो अब क्या वो सोचेगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और उसके बाद फिर जल्दी से वो जाता है विंडो के पास और एक पेपर और इंक मांगता है। ही वॉज फ्यूरियस एंड इमीडिएटली रिप्लाइड दैट लेटर। उसके बाद फिर वो जल्दी से उस लेटर का रिप्लाई लिख करके भेज देता है, क्योंकि बहुत ही फ्यूरियस था वो, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। डरा हुआ नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो। द लेटर फेल into the mailbox. पोस्टमास्टर went to open it. फिर से पोस्टमास्टर गए और उसे ओपन किया। इट सैड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। और उसने कहा कि भगवान, मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था उसमें से बस मुझे 70 pesos मिले हैं, और सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। उसने कहा कि मुझे और बाकी पैसे दे दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन मुझे मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा इस बार, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। और क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, वो बहुत ही शैतान है, वो उन्होंने पैसे चुरा लिए, ऐसा उसकी थिंकिंग थी। सो यू कैन जस्ट रीड एंड लाफ ऑन हिज इनोसेंसी। वो कितना इनोसेंट था कि जिसने उसकी मदद की उसे ही उसने बंच ऑफ क्रुक कहा। और सोचो जो पोस्ट मास्टर जिसने उसकी मदद की, जब वो पढ़ा तो उसे क्या फील हुआ होगा। ही मस्ट बी लाफिंग लाइक अस वी आर डूइंग नाउ। हमारी तरफ वो भी हंसने लगा होगा। सो दिस वॉज द स्टोरी which is given in your book. So this is the exercise which I want you to do at your home, so that whatever you understand from this chapter, you practice it. So this exercise you have to click the image of this and you do it. So Lencho crop was dashed by heavy rain, so ruined by heavy rain you can write. So like this you have to do this whole exercise, and answer will be published in next video. So for today
this is the end of the lecture. And how was the lecture, you have to write in the comment box, and do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.